Hello everyone, welcome to National Children Higher Secondary School. This is me Priya Sharma and today we'll start first topic of history, the French Revolution. So coming to the next slide, French Revolution. So we are going to study the content. Let us know the contents with that what we are going to study. So the first is French society during late 18th century. The outbreak of the revolution. France abolishes monarchy and become a republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery, the revolution and everyday life. And in this video, I am going to cover only the first topic, French society during late 18th century. And then in the next video, I'll cover the two topics, the outbreak of the revolution and France abolishes monarchy and become a republic. So, for understanding what French society during late 18th century, coming to the next slide. Students, French society during 18th century. Now, what was the society during 18th century? We all know in 1774, Louis XVI, he was ruling there as a king and he was from a Bourbon family, and we also know that the France was under monarchy. So, and King Louis was only 20 years old at that time and he married to an Austrian girl named Marie Antoinette. She was princess of that time. And what happened at that time? That the acute shortage of finance due to prolonged war and extravagant court. Shortage of finance. Now what happened? Why shortage of finance was there? So for shortage of finance की जो condition थी that came because of the prolonged war, means जो continuously बहुत ज़्यादा wars चल रही थी, जो continuously बहुत long wars चल रही थी, उसकी वजह से फ्रेंच की जो condition थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, financially भी और दूसरे तरीके से भी. France was under very heavy debt. France was under very heavy debt. बहुत ज़्यादा heavy debts लिए हुए थे France ने. King forced increased tax and king was forcing to increase the taxes because what he was thinking that with the help of taxes he can easily cover up the debts which France was bearing. And society based on estate of feudal system, and society was totally based on feudal system. Now students, what is feudal system? So I'll tell you what is feudal system. Feudal system is like when any landholder exchange their land for service or labor. Means those who are like noble or clergy, means जो लोग बहुत rich थे, those who are having huge lands, they used to exchange their lands. Means वो small peasants को अपने lands जो हैं exchange कर देते थे. Means work करने के लिए उनको allow कर देते थे that you can work here, आप work कर सकते हैं इस पे. And उसके exchange में what क्या लेते थे? Services and labor. Means those who were working there, वो services और labor तो बन ही गए, है ना. तो बेसिकली उनको उन्हें कुछ पे भी नहीं करना पड़ता था और बहुत इजीली एक फ्यूडल सिस्टम जो है जनरेट हो रहा था ये सोसाइटी में. नाउ हाउ वाज सोसाइटी बेस्ड? कम ऑन, लेट्स सी. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Social setup. Now, how was the society set up? Society was set up in three parts, like three estates. First estate, second estate, third estate. In first estates, clergy people were there. Second estate, nobility people were there. Third estate, the common people. Now let us know what the first estate exactly means. Coming to the next slide. First estate, the clergy. They enjoy privilege by birth. First state, the clergy. In this, basically all the people, means all the people of king family, means all the people of royal families, they were included in this estate. And they enjoy privilege by birth. We know that जो भी privilege by birth उनको मिलते थे, they enjoy that privilege. And exempted from paying taxes. Taxes को pay करने से बिल्कुल बाहर थे because they were not having any force that they have to pay taxes. Extracted taxes called tedits. Now एक taxes थे जो कि थे tedits. अब tedits जो tax थे, it was a tax paid by peasant to church owners.
जो चर्च ओनर्स थे, पीजेंट्स उनको अपना 1/3 जो उनका प्रोडक्शन होता था उसका पेमेंट दिया करते थे। तो वो भी इनडायरेक्टली, जो ये टैक्स था ये भी इनडायरेक्टली क्या हो रहा था, स्लर्जी मेंबर्स के पास आ रहा था और वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। Okay, now coming to the next slide for understanding second estate. Second estate, the nobility. अब noble people कौन थे? The noble people were the church owners. Means जो भी church owners थे, because we have already known that the church owners they are having means they are having land, they are having huge land. जितनी चर्च की लैंड होती थी वो लोग उस चर्च की लैंड को अपने अंडर रखते थे एंड वो लोगों को मीन्स पीजेंट, स्मॉल पीजेंट्स को वो उन लोगों को एक्सचेंज में अपनी लैंड देते थे और उन लोगों से सर्विसेज और लेबर्स लेते थे। Now what was the privilege for them? Enjoy feudal privilege. Feudal privilege, I have explained you right now only what was the feudal system, and they enjoy the feudal privilege. Exempted from paying taxes, इनको भी taxes paying से बाहर रखा गया था, ठीक है। Extract taxes called tails, और extract मतलब उनको एक benefit था जो taxes tails के नाम से जाना जाता था, and that was a tax which was directly paid to the estate, जो estate को directly pay किया जाता था, ठीक है। तो ये जो taxes pay कर रहे थे ये डायरेक्टली उनको सेकंड एस्टेट के लोगों को मिल रहा था, इनफैक्ट फर्स्ट एस्टेट के लोगों को मिल रहा था। तो दैट वाज आल्सो बेनिफिट फॉर देम। नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट थर्ड एस्टेट पीपल वर, we'll go to the next slide. Third estate, the common people. Now who were the common people? People involved in third estate were big businessmen, merchant, court officials, lawyers, peasants, and small peasants like landless labor was there, servant. These all were included in the third estate. And the burden of taxes was borne by the third estate. Whatever the taxes which was imposed by the king is being paid by third estate. जो भी taxes first estate means king के द्वारा लगाए जाते थे, that was totally bear by third estate. Third estate उनको bear करते थे. Okay. Now taxpayer. I have already explained you that taxpayers in third estate was bore the entire tax burden. जितना भी tax burden, जो भी taxes लगाते थे king, that was only bore by third estate. That this was there in that 1/10 of the agriculture produce they have to give to the church owners. ये एक चीज फिक्स कर दी गई थी और ये भी कहीं ना कहीं नोबल लोगों के लिए या स्लर्जी लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली थी. Tails was there, in that taxes was paid to the estate directly. जो taxes pay करते थे, कौन करता था? ये सारे taxes सब pay जो कर रहे थे, that they were only third estate people. And clergy and nobility enjoy at their cost. और clergy और nobility जितने members थे, they enjoy at their cost. अपनी cost पे वो लोग बहुत अच्छे से enjoy कर रहे थे. उनको दोनों साइड से taxes जो है मिल रहे थे, चाहे वो heads हों चाहे वो tails हों, उसके बेसिस पे वो जो है अपना बहुत अच्छा living style maintain कर रहे थे. Now what happened? What happened after this? So we'll move to the next topic. The struggle to survive. Now how the third estate people were surviving at that time? So that was quite horrible. या बोल सकते हैं that was very tensed for them to survive in that time. Rapid increase in population was there. Increase population जो है बहुत ही speed में increase हो रही थी, and because of that there were rapid increase in demand of food grain as well. But what happened at that time? Only drought and hail. Because of drought and hail, it reduces the harvest, and because of that the situation become very worst. Means because the wages were very less. Means the third estate member, they were getting a very few wages, very less wages, but the prices of the food grain was going higher, and because of that the wages could not match the rising prices. And after this the outbreak of subsistence crisis happened. Means subsistence crisis होता है भुखमरी. Means लोग जो हैं भुखमरी से मरने लग गए, भुखमरी का शिकार होने लग गए और बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन जो है उनकी हो गई वहां पर, ठीक है।
तो ये जो था ये पूरा फर्स्ट टॉपिक था इन दिस फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी. व्हाट वाज देयर इन लेट 18th सेंचुरी वी हैव रेड टिल येट. So in this video, we are going to start with the topic growing middle class demanding end to privilege. Students, in early video, we have read about the French society and the taxes were paid by third estate members who were the taxpayers and so on. So in this, we are going to study the growing middle class demand end to privilege. So coming to the first point, peasants and workers lacked resources to bring change in social and economic order. Responsibility fell on prosperous and educated member of third estate. Prosperous middle class emerged. Now what happened? Peasants and workers means जो peasants workers थे उनको resources का lack तो हो रहा था, we were knowing that. तो उस लैक की वजह से, उस रिसोर्सेज की लैकिंगनेस की वजह से सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में बोलें तो हम ये चेंजेस आना शुरू हो गए थे. एंड बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल्स ऑन द प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट. एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स मीन्स जो प्रॉस्परस और बहुत एजुकेटेड मेंबर्स लाइक लॉयर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर आ गई थी. एंड प्रॉस्परस मिडिल क्लास इमर्ज्ड, और जो प्रॉस्परस पूरा मिडिल क्लास था वो टोटली इमर्ज्ड हो चुका था. नाउ न्यू आइडियाज स्प्रैंग अप, न्यू आइडियाज जनरेट हुए. न्यू आइडियाज क्या जनरेट हुए? दैट क्रिएशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्ट्रेस ऑन डिविजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट. New ideas sprang out हुए. Basically ideas जो थे that was only for creating a society. So creating a society, the society was totally based on the freedom and equal law and opportunities. जो पूरी society थी उसे totally एक freedom based society, equal laws, opportunity के basis पे society को जो है create करने का decision लिया गया. और बोला गया कि जो भी डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, मींस जो भी डिवीज़न ऑफ पावर है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर स्ट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस वट एवर द पावर्स विच वर राइट नाउ विद द लोएस्ट 16, मतलब सिर्फ लोएस्ट 16 वॉज देयर टू टेक ऑल द डिसीजंस. तो वो कहीं ना कहीं दे पीपल वांट दैट कि ये जो है इसका डिवीज़न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन. Now what happened when third state started thinking कि now we need a change, कि अब हमें एक changes चाहिए. Then after that what happened? Now we are going to study the outbreak of the revolution. First point, monarch could not impose taxes at his will. He needed approval of a state general to pass the proposal. King called state general to pass tax proposals, voting to be conducted on the basis of one estate, one vote. Now what happened? In this revolution, the first thing was like कि monarch means जो भी head या जो भी king है वो अपनी मर्जी से कैसे भी taxes impose नहीं कर सकता. He need approval means उसे जो भी taxes impose करने हैं he must go to a state general and he need approval from him. Next one was that king called a state general to pass proposal. And what happened? हम जानते हैं अभी जो फ्रांस था वो मोनार्की के अंडर था. इट वॉज अंडर द मोनार्की ओनली. तो जो किंग था वो स्टेट जनरल्स जो भी थे उनको अपने अंडर रखते थे, ठीक है. एंड अपने अंडर रखने की वजह से ये था कि वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, मतलब जो भी वो टैक्सेस इम्पोज करना चाहते थे, किसी के ऊपर भी करना चाहते थे, दैट वॉज स्टिल आर देयर इन किंग्स हैंड ओनली. मीन्स ये हमें दिख रहा था दैट स्टेट जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, बट नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं था. किंग वॉज देयर, ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ स्टेट जनरल एंड जो भी लॉज, जो भी डिसीजंस पास होते थे वो उनके अंडर होते थे, ठीक है. वोटिंग टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेट वन वोट. जो भी वोटिंग थी वो वन स्टेट वन वोट के बेसिस पे जो है उन्होंने डिमांड की कि हर वन स्टेट वन वोट के बेसिस पे डिमांड मतलब
होगा इसके, अगर आप सोचेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट हो तो ये चीज़ नहीं रहेगी। तो अभी जो डिसीजन था किंग्स की साइड से वो यही था कि द वोटिंग वाज टोटली बेस्ड ऑन 1 स्टेट 1 वोट। Now what happened after listening this, third estate walked out when the demand of 1 member 1 vote denied. अब क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, what they want 1 vote 1 member 1 vote की जो थी वो उनकी डिमांड थी, but they denied this demand, and after this they walked out from the assembly. Okay, now third statement in an indoor tennis court in Versailles and founded National Assembly and drafted a constitution for France. Now what happened, third estate member जो third estate के लोग थे, ये इंडोर टेनिस कोर्ट था जो कि वर्सेल्स में था, वहाँ उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत वहाँ से हो गई। Severe winter, bad harvest, price rise, holding of supplies made the situation worse in France. But what happened उसके बाद, क्योंकि struggle was there, बहुत struggle था, ये हम सब जानते हैं, तो उस वजह बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड थी, बहुत बैड हार्वेस्ट हो चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सप्लाई ऑफ फूड वाज गोइंग हाई, और सप्लाई ऑफ फूड बहुत कम थी और प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन लोगों के लिए कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। एंड किंग ऑर्डर टू सप्रेस एजिटेटिंग क्राउड लेड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। और किंग ने क्या ऑर्डर किया कि जो भी क्राउड जो है आ रहा है उसको एजिटेट कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। बट इस वजह से, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे और किंग के इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे थे कि वो सप्रेस कर देंगे क्राउड को, मारना पीटना हटाना, तो उस वजह से जो क्राउड है पूरा उसने 14 जुलाई 1789 जो बेस्टिल था जहाँ किंग रहते थे वहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। एंड दे स्टॉर्म ऑफ द बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। Now, peasant attacked residence of the nobles and landlords. Whosoever the noble people, landlord peoples were there, peasants attacked their residence as well. Louis XVI, sensing the tensed situation, recognition National Assembly and accepted his path to be checked by Constitution. And what happened? Louis XVI जो थे उनको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये जो टेंस सिचुएशन थी, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम मतलब अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो गलती थी, they started accepting that thing and he said to them that I'll check again the constitution, means जो constitution में rights आपके लिए दिए गए थे, I'll check it once again. So the feudal obligation, taxes, privilege were abolished, land owned by church confiscated. Feudal obligations जो भी थी, taxes, privilege, whatever were there, that were abolished and land owned by the church confiscated. और जो land जो थी church की church confiscated लोग जो थे वो land own करने लग गए। Now, what happened after this? After outbreak of the revolution, France became a constitutional monarchy. Now, what happened? Constitutional monarchy, the meaning of constitutional monarchy is like France is still in a monarch, मतलब अभी भी वो किंग के रूल के अंदर है, बट नाउ इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया गया लोगों के लिए जस्ट टू शो कि हाँ हम आपकी केयर कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली दैट वाज नॉट द फ्रीडम और द रिपब्लिक थिंग यू कैन से, मतलब ये कोई फ्रीडम और कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, बट हाँ एक किंग को, लोगों को बस ये प्रिटेंड करने के लिए कि हमने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, हमने आपके लिए रूल्स बना दिए। सो द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ड्राफ्टिंग ऑफ फ्रांस constitution compiled in 1791. So what was their points? Power divided among legislature, executive and judiciary. Not all citizens had right to vote. अभी भी सभी citizens को right to vote नहीं दिया गया,
21 ईयर की अबव की एज के, वो भी उसमें भी सिर्फ मेन थे जिनको राइट टू वोट दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मैन का डिस्कशन हो रहा है, विमेन वर नॉट देयर, इसलिए विमेन का एक डिफरेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, डिड विमेन हैव अ रिवोल्यूशन, फाइन। सो सिटीजन जितने थे उनको राइट टू वोट दिया गया, नॉट ऑल नहीं, मतलब 21 ईयर्स से अबव और स्पेशली मैंस। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड सिटीजन वर डन, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेस्ट सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स, और स्टेट को बोला गया कि दिस इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स। नाउ France abolishes monarchy and become republic. Now this is the final thing. अभी तक क्या हुआ था, France became a constitutional monarchy. Constitutional monarchy form हुआ था France, but now France became republic after abolishing monarchy. Monarchy system totally abolish कर दिया गया and वो republic बन गया. First point, Louis XVI entered into the secret negotiation with the Persia. Neighboring country got worried about development in the France and set up to prevent the reforms. Louis XVI जो एक secret negotiation जो पर्शिया के साथ चल रहा था उसमें बिजी हो गए। जो neighboring country थी फ्रांस की, उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन होने लग गई फ्रांस की डेवलपमेंट देखकर। Before they could do, so National Assembly voted war against Persia and Austria, against kings and aristocracy all over the European. Means National Assembly कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन कोई ले पाता, लाइक किंग या कोई और, नेशनल असेंबली जो थी उसने फाइनली वॉर जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट कर दी, स्पेशली किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट जितने लोग थे उनके खिलाफ ऑल ओवर यूरोप में जो है जंग छिड़ गई, मीन्स वॉर जो है क्रिएट हो गई। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स कॉज लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थी कहीं ना कहीं उनको इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई, मीन्स अमाउंट फाइनेंशियल वाइज बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशानी जो है उन्हें इस वॉर के अंडर उठानी पड़ी थी। Politicals sprang up to discuss government policies and plan their actions. Political sprang मतलब political government came out with the policies and they planned their actions. The Jacobins Club grew in the popularity. It included less prosperous section of the society, and at that time Jacobins Club, it grew in the popularity. They came in the popularity क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे they were less prosperous section of the society, and it was led by the Maximilian Robespierre. The club was led by the Maximilian Robespierre, and excursion was planned by Jacobins. King's palace was stormed, royal guards massacred, and king held as hostage. And after that what they did, they planned something. Jacobins planned that the king palace was stormed. King's palace storm कर दिया गया, जो royal guard थे उनको मार दिया गया, and king held as a hostage. king को बंदी बना लिया गया. Assembly voted to imprison the royal family and held elections. The men above 21 year enjoying voting rights. Assembly ने जो है उनको बोला गया कि प्लीज़ टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, जितनी भी रॉयल फैमिली थी उनको इम्प्रिजन कर दिया जाए, एंड दे अगेन जो है इलेक्शंस, दे अगेन मेक इलेक्शंस, एंड after that 21 years above the man above the 21 years enjoying voting rights. Newly elected assembly called convention was set up, abolishing monarchy and declaring France as republic. अब जो न्यू इलेक्टेड असेंबली उस टाइम फॉर्म हुई, उसने जितना भी जो मोनार्की वाला सिस्टम था वो फाइनली अबॉलिश किया और फ्रांस को फाइनली क्या बना दिया गया, रिपब्लिक. लेटर किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड. और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, किंग और जो क्वीन थे, मीन्स लुइस 16 और किंग जो उनकी वाइफ थी, क्वीन थी जो, उनको एग्जीक्यूट. स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेशनल चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल. दिस इज़ मी प्रिया शर्मा and today we are going to discuss the French Revolution. I have already gave two videos on this topic. This is my third video, and in this we are going to study the reign of terror, the directory rules. France, did women have revolution? Okay, so coming to the topic, the reign of terror. Robespierre followed the policy of severe control and eliminated the enemies of republic. So basically what happened, Robespierre made such policies
विच वॉज नॉट गुड फॉर सिटीजन्स के बेनिफिट में वो पॉलिसीज़ नहीं थी. ओके, सो द पॉलिसीज़ विच वॉज मेड वो बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली वेजेस जो थे बहुत सेट कर दिए गए थे. अगर हम फूड ग्रेन की बात करें तो फूड ग्रेन की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो लोगों की वेजेस कम थी और फूड ग्रेन बहुत हाई प्राइस पे थे, तो वो बहुत टफ टास्क हो गया था लोगों को अपनी बेसिक नीड कंज्यूम करने के लिए. नेक्स्ट था गिल्टीवर गिलेटिन. अब गिलेटिन का मतलब मैं आपको पहले बताऊं. गिलेटिन वॉज अ डिवाइस विच वॉज हैविंग 2 पोल्स विथ 2 ब्लेड्स, और वो यूज़ किया जाता था रॉबस्पियर की साइड से उन लोगों के लिए जो उस पॉलिसीज़ को नहीं मानते थे, जो उसकी पॉलिसीज़ को डिनाई करते थे. ओके, जो उसके रूल्स बनाए हुए नहीं मानते थे, तो उनको बेहेड कर दिया जाता था. 2 पोल्स के बीच में 2 ब्लेड्स होते थे, जहाँ सेंटर में उनका हेड रख कर जो है बेहेड कर दिया जाता था. तो जितने भी गिल्टी होते थे, जितने लोग होते थे जो उसकी पॉलिसीज़ नहीं मानते थे, जो आउट ऑफ द वे जाके कुछ वर्क करते थे, तो उनको गिल्टिन कर दिया जाता था. तो बेसिकली ये जो रेन ऑफ टेरर है ये रॉबस्पियर के टाइम आया. टेरर वर्ड इसीलिए ही यूज़ किया गया है बिकॉज ये जो सिचुएशन थी, वो जो सिनेरियो, जो टाइम था, वो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा टेरर से भरा हुआ लोगों के लिए था, क्योंकि रॉबस्पियर ने ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट कर दी थी जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, बट अगर वो पॉलिसीज़ फॉलो नहीं करते थे तो उनको गिल्टिन डिवाइस से जो है बिहेड कर दिया जाता था. तो नाउ कमिंग टू रिफॉर्म्स बाय रॉबस्पियर. सो व्हाट वर द पॉलिसीज मेड बाय रॉबस्पियर? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस टॉपिक. लिमिट सेट फॉर वेजेस की लिमिट सेट हो चुकी थी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट वन, रेशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड्स. दिस वन पॉइंट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लाइक कि ब्रेड और मीट की रेशनिंग हो चुकी थी. द प्राइस वॉज फिक्स्ड एंड एवरी वन हैव टू बाय पर्टिकुलर राशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस विच वॉज सेट बाय रॉबस्पियर. नेक्स्ट वन, peasants to sell grain at government fixed price, means peasants were not allowed to sell their grains on another price, means कहीं और वो जाकर नहीं उसको सोल्ड आउट कर सकते थे. जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी थी उनके लिए, उन्हें उसी प्राइस पर वो अपनी ग्रेन्स को सेल करना था. नेक्स्ट वन, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर. वाइट फ्लोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और जो ब्रेड्स थी वो होल व्हीट की जो है बनने लग गई थी. मीन्स वाइट फ्लोर का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. नॉर्मल जो लोग थे वो वाइट फ्लोर कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट वन, शटिंग डाउन ऑफ चर्चेज एंड कन्वर्टिंग इनटू ऑफिस एंड बैरिक्स. जितनी भी चर्च थे वहाँ पर सब शट डाउन कर दिए गए थे एंड दे वर कन्वर्टेड इनटू बैरिक्स एंड ऑफिसेज और बैरिक्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया था. And his policy was too harsh to follow. So basically the policy which was created by Robespierre, that was too harsh, बहुत tough थी, बहुत difficult थी वहाँ के लोगों को उसको फॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इस तरीके की जो पॉलिसीज़ थी, लाइक स्पेशली द वेजेस वर सेट, क्योंकि उनकी वेजेस बहुत सेट कर दी गई थी. और उनके जो राशनिंग, अगर मीट या ब्रेड की बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे चीपेस्ट फूड था वहाँ वो ब्रेड था, विच वॉज कंज्यूम्ड बाय एवरीवन, हर व्यक्ति कंज्यूम करता था. एंड वो ही बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया गया था, बहुत पर्टिकुलर रेशनिंग हो गई थी. एंड द वेजेस वाज आल्सो सेटेड. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उन लोगों को अपना एक जो नॉर्मल कंजम्पशन का फूड है वो भी कंज्यूम करने में बहुत टफ हो रहा था. तो बेसिकली जो पूरी पॉलिसी थी रॉबस्पियर की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वहाँ के सिटीजन को. Coming to next topic, a directory rules France. In this, fall of Jacobin club gave way to middle class. Jacobins club का डिस्कशन हमने पहले भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया था. द क्लब वाज फॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड जितने भी मीन्स थर्ड लेवल वाले जो लोग थे वो सारे इस क्लब में थे, ठीक है. एंड जैकोबिन क्लब का फॉल होने के कारण जो मिडिल क्लास लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरस चीज़ें इमर्ज हुई थी, ठीक है. क्योंकि उस टाइम जैकोबिन्स क्लब की वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी, बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड हो गई थी. बट बिकॉज ऑफ फॉलिंग ऑफ जैकोबिन्स क्लब उनकी जो प्रॉस्पेरस चीज़ें थी दैट वाज इमर्ज्ड. Next, new constitution took away to voting rights. New constitution was formed, new voting rights was formed, and under that जो भी बहुत ज़्यादा
अनप्रिविलेज्ड लोग थे, मीन्स जिनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, दे वर गिवन वोटिंग राइट्स एंड ये एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ तो ये वोटिंग राइट्स के भी चेंजेस जो हैं उस टाइम हुए. नेक्स्ट, स्टेट टू हैव 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज विथ 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स. स्टेट के पास 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म होने का डिसीजन हुआ जिसमें हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव्स होंगे. नेक्स्ट, इट फर्दर गेव वे टू नेपोलियन, अ मिलिट्री डिक्टेटर. अच्छा, बेसिकली व्हाट हैपन, हमने ऑलरेडी रीड किया कि रॉबस्पियर की पॉलिसीज़ जो थी वो हार्श थी एंड बहुत टफ हो रहा था लोगों को वो फॉलो करना. सो समहाउ जो उसकी पॉलिसीज़ को ब्रेक करने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उन्होंने एंटर किया एंड बिकॉज ऑफ दिस नेपोलियन बोनापार्टे की कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बोल सकते हैं ना, एक लेवल है जो हाई होने लग गया, लोग जो हैं उनमें इंटरेस्ट लेने लग गए. और इस तरीके से ये सिचुएशंस जब हुई, जब इतनी बुरी कंडीशन की जैकोबिन्स क्लब जो है वो फॉल हो गया, नई पॉलिसीज़ क्रिएट कर दी गई हर जगह, चाहे वोटिंग राइट्स हो या इस तरीके के, तो नेपोलियन बोनापार्टे को दोबारा से चांस मिल गया वहाँ पे एंटर करने का, दोबारा अपने आप को लीडरशिप में लाने का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिड वुमेन हैव रिवॉल्यूशन. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल चैप्टर बिकॉज हम स्टार्टिंग से सिर्फ रिवॉल्यूशन जो पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट मेंस, कहीं पर भी वुमेन का डिस्कशन नहीं हुआ है. तो द क्वेश्चन अराइजेस कि वुमेन्स का भी कोई रिवॉल्यूशन था या वुमेन्स ने भी कोई किसी भी तरीके का जो है पार्टिसिपेशन वहाँ दिया था. येस, वुमेन हैव रिवॉल्यूशन. सो women participated in events, women started participated in events. जितने events होते थे, जितने भी रैलीज होती थी, women's ने अपने वो events में participate करना शुरू किया. They started forming political clubs and they started their own newspaper just to discuss their things, जो उनको चाहिए, जो demands हैं उनकी, उनको कैसे वो लोगों तक लाए. So they formed their political clubs and newspapers. And next, some of the things were there, like एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था विच वॉज फॉर्म्ड इन 1791 एंड इन दैट वुमेन्स ने राइट टू वोट की डिमांड की थी, बट गवर्नमेंट डिनाइड दैट डिमांड बिकॉज एट दैट टाइम ओनली मेंस गॉट द राइट टू वोट एंड वो भी 21 अबव ईयर जो मेन थे उनको राइट टू वोट का जो है दे दिया गया था राइट्स. बट एट दैट टाइम वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड बाय दिस डिसीजन एंड देयर मेन फोकस वॉज फॉर राइट टू वोट, मीन्स उनको वोटिंग राइट्स चाहिए थे, वो उनका मेन फोकस था बिकॉज वो भी एक इक्वल बिहेवियर चाहती थी मैंस के कंपैरिजन में अपना भी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट टुक फ्यू स्टेप्स लाइक कंपल्सरी एजुकेशन, नो फोर्स मैरिजेस, मैरिड टू बी रजिस्टर्ड, डिवोर्स मेड लीगल एंड अप्लाइड बाय मैन एंड वुमेन. जब इस तरीके की पॉलिटिकल क्लब्स बने, न्यूज़पेपर्स फॉर्म हुए, उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंची, तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी जो उस टाइम, उसने कुछ स्टेप्स लिए, लाइक स्कूलिंग कंपलसरी कर दी उनकी, फोर्सफुली जो मैरिज करवाते थे पेरेंट्स वो प्रॉपरली बंद कर दिया गया. नेक्स्ट था डिवोर्स जो है, मैरिजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड होने लग गई, जिससे कल को अगर उनके हस्बैंड्स उनको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं या फिर वो कहीं और नेक्स्ट अफेयर करते हैं तो वो उन पे लीगली जो है उन पे कोई एक केस कर सकें. तो जो मैरिजेस थी वो रजिस्टर्ड होने लगी, डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया एंड वो दोनों साइड से जो है डिवोर्स लिया जा सकता था. मींस पहले जो था सिर्फ डिवोर्स मेन दे सकता था, वेमेन को राइट नहीं था, बट उसके बाद कुछ एक पॉलिसीज चेंज होने के बाद डिवोर्स जो है वो लीगल कर दिया गया एंड इट कैन बी टेकन बाय मेन और वेमेन, मींस कोई भी उसको जो है अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मीन द मेन एम वाज टू गेट पॉलिटिकल राइट्स. विमेंस का मेन एम यही था कि दे रियली वांट द पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, लाइक दे वांट द प्रॉपर सीट एंड लेजिस्लेटिव, उनको लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो मेंबर्स थे 5 जो काउंसिल्स की, एग्जीक्यूटिव्स की, वहाँ पे भी उनको अपनी पोजीशन चाहिए थी. सो इट वाज गिवन बाय गवर्नमेंट, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वाज गिवन बाय गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट, एट लास्ट इन 1946 दे फाइनली गॉट राइट टू वोट, मीन्स जो उनका मेन रिवॉल्यूशन था, मेन जो टॉपिक था वो राइट टू वोट का उनको 1941. I hope you all are doing good.
This is me, Priya Sharma, and today we are going to continue our topic, the French Revolution, and in this we are going to read the abolition of slavery. So students, abolition of slavery, it is very important topic in this chapter. So as we all know that slavery started in 17th century, and some of the colonies of Caribbean, they were very important suppliers of indigo, sugar and coffee, and because of that all this means all the people, all the slaves who were working in French colonies, they have to go some they have to go some unfamiliar land, and they have to work there because of the demand which was increasing at the time of French Revolution, especially indigo, sugar and coffee. And one of the triangular pattern was converted between Africa, America and Europe. In this what they did कि वो अपनी जगह से slaves को जो क्या करते थे, टाइटली शिप में पैक करते थे और कैरिबियन पहुंचाते थे. तो इट वाज अ डील बिटवीन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. एक डील हो गई उनके बीच में कि हम लोग जो है अपने स्लेव्स को अपनी शिप्स में टाइटली पैक कर आप तक पहुंचाएंगे. बिकॉज रीज़न यही था कि जो शुगर, कॉफ़ी और जो इंडिगो थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी डे बाय डे. एंड उस चीज़ की वजह से जो क्या था हो रहा था कि उन लोगों के पास स्लेव्स की कमी हो रही थी और स्लेव्स वहाँ जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अनफेमिलियर लैंड पे वर्क करना उनको थोड़ा सा ऑड लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं होते थे. तो वहाँ के जो हेड्स थे, मीन्स जो फॉर एग्जांपल जैसे नेपोलियन बोनापार्टे, हमने बोला अभी लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि नेपोलियन बोनापार्टे जो थे वो अब वहाँ के हेड बन गए थे. तो उन्होंने जो है नेपोलियन बोनापार्टे ने दोबारा से इसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को. जहाँ पे जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे उन लोगों ने बहुत ट्राई किया था, बहुत कोशिश की थी कि जो ये स्लेवरी है वो अबॉलिश हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों को ना ही ये लोग वेजेस दे रहे थे, ना ही ये लोग उनको वर्किंग आवर्स उनके कोई डिसाइडेड थे. बस उन लोगों को शिप में टाइटली पैक करके ले जाया जाता था लाइक इन एनिमल्स, और वहाँ एनिमल्स की तरह ले जाके उनसे सिर्फ काम करवाया जाता था. तो जैकोबिन क्लब ट्राई टू अबॉलिश इट, बट नेपोलियन बोनापार्टे रीइंट्रोड्यूस इट. बट कुछ टाइम बाद जब वहाँ के ओनर्स लाइक जो वहाँ के जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जो लोग थे जो यहाँ से जा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये इस तरीके का जो अनफेयर मीन्स उनके साथ हो रहे हैं, इस पे स्टैंड लेना उन्हीं की साइड से है, उन्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो समहाउ कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए उस पे स्टैंड लिया, कुछ स्लोगन्स लिखे गए, उन लोगों ने डिनाई किया कि हम नहीं जाएंगे. तो इस तरीके से कुछ टाइम बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे ने रीइंट्रोड्यूस की, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद स्लेवरी जो है अबॉलिश कर दी गई फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज़ में, जो कि 1848 में फाइनली स्लेवरी जो है अबॉलिश वहाँ से हो गई. तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन की. अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आते हैं. सो जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स वेरी क्लियरली. एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ दैट स्लेवरी वाज स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी, एंड एक रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड्स थी किसकी, इंडिगो, कॉफ़ी और टी, इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, और इसी वजह से उन लोगों को बहुत कम वेजेस या नो वेजेस में वर्क करना पड़ रहा था. नेपोलियन बोनापार्टे ने उसे दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था, बट कुछ टाइम बाद वो अबॉलिश हो गई थी. तो फाइनली 1848 में जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश हो चुकी थी. सो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक. Okay, now we are going to talk about the revolution and everyday life. So, in this, various laws were passed by the revolutionary government to practice liberty and equalities. Means बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़, न्यू लॉज बनाए गए लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि लैकिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में. हम कंटिन्यू रीड करते आ रहे हैं, इज़न्ट इट. तो किस तरीके की लॉज फॉर्म किए गए, लाइक सेंसरशिप वॉज अबॉलिश्ड, freedom of speech and expression was made natural right. मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम हमारी बात किस
किस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये नेचुरल राइट्स बना दिए गए जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फ्रेंच कॉलोनीज़ में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं, हम स्टार्टिंग से रीड करते आ रहे हैं कि वो एक अंडर किंग्स के अंडर जो है वो पूरी कॉलोनीज़ थी, ठीक है। किंग्स लुइस 16 से शुरू हुई थी और फाइनली जो हमने अभी लास्ट रीड किया जहाँ नेपोलियन बोनापार्टे थे वो मिलिट्री डिक्टेटर थे और जिन्होंने डिक्टेट किया पूरी फ्रेंच कॉलोनी को। बट उसके बाद जो था फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही नेचुरल राइट जो है बना दिया गया, लोगों को जहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना या उस अपने किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना उसे बहुत इजी कर दिया गया। मीन्स उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था, तो दैट वाज मेड नेचुरल राइट। नेक्स्ट वन, व्यू एंड आइडियाज़ ट्रैवल इन कंट्री साइड, मीन्स ऑल ओवर द कंट्री, जितनी भी कंट्री में जो भी लोग थे अपने आइडियाज़ अपने व्यूज़ देने लग गए। किस चीज़ से रिगार्डिंग, लाइक किस तरीके से हमें हमारी सोसाइटी मेंटेन करनी चाहिए, किस तरीके की वैल्यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से हम इक्वालिटी ला सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे प्लेज, काफ़ी सारे सॉन्ग्स, काफ़ी सारे फेस्टिव प्रोसेशंस जो थे वो किए गए लोगों के साइड से, जिससे जितने भी जो एजुकेटेड लोग थे, मीन्स जो समझते थे कि राइट्स क्या होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करने लगी। एंड उनकी अट्रैक्शन के कारण जो क्या था, लोग बहुत ही ईजीली इस चीज़ को समझ गए कि जो भी राइट्स जो हमें अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट आर बेसिक राइट्स, वो हमारे बेसिक राइट्स हैं जो कि हमें मिलने चाहिए। एंड बेसिकली दीज प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड जो भी जो फेस्टिव प्रोसेशंस थे, एजुकेटेड पीपल को तो वो अट्रैक्ट कर ही रहे थे, बट जो अनएजुकेटेड पीपल थे उन्हें भी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिल रही थी कि वॉट एवर द थिंग्स विच वी आर गेटिंग नाउ, हमें वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ऑल द थिंग्स विच वर डूइंग बिफोर रिवोल्यूशन या रिवोल्यूशन के बाद जो भी जो लाइफस्टाइल था पूरा वो इस तरीके का हो गया था। मीन्स हमने बहुत सारी चीज़ें क्रॉस आउट कर ली थी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया जहाँ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी था, तो फाइनली जो स्लेवरी सिस्टम था वो भी अबॉलिश हो चुका था और फ्रेंच कॉलोनीज़ जो हैं धीरे धीरे क्या हो रही थी, इंट्रोड्यूस होती जा रही थी और लोग वहाँ पे क्या हो रहे थे, फ्रीली अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रहे थे। तो दिस वाज ऑल इन दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। ही क्राउन्ड हिमसेल्फ इन 1804। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड क्रिएटिंग न्यू किंगडम। मीन्स उनकी जो पॉलिसीज़ थी बोनापार्टे की, उन्हें नया किंगडम क्रिएट करना था और कुछ एक नए आइडियाज़ के साथ जो है कॉलोनी को क्रिएट करना था। इनिशियली ही वाज सीन एज मॉडर्नाइज़र। मीन्स स्टार्टिंग में लोगों को वो एक मॉडर्नाइज़र जैसे फील हुए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई या फिर काफ़ी सारे राइट्स जो लोगों को उस टाइम डिमांड कर रहे थे, उनकी काफ़ी हेल्प हुई। तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, बट कुछ टाइम बाद वो एक इन्वेडर की तरह दिखने लगे। इन्वेडर होता है मतलब जो सामने वाले के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा हो, ठीक है, बेनिफिशियल ना हो, वो बेकार मतलब काम उनके लिए बेकार कर रहा हो। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है जब वो इन्वेडर फील होने लग गए तो लोगों ने उनका क्या किया, फॉल डाउन कर दिया, उनको डिनाई कर दिया, उनकी चीज़ें मानना डिनाई कर दी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस कर दी थी जो कि अच्छी नहीं थी, ठीक है, जो कि बेटर नहीं थी। एंड आफ्टर दैट जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ कब 1815 में, उसमें वो डिफीट हो गए। बट कुछ एक चीज़ें जो नेपोलियन बोनापार्टे की बहुत अच्छी थी वो काफ़ी टाइम तक फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो है इंट्रोड्यूस होती रहीं। लोगों ने उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिया और काफ़ी टाइम तक उनकी वो चीज़ें जो हैं उनको फॉलो वो करते रहे। सो ये राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। Coming to the last topic of French Revolution, legacy of French Revolution. Okay, legacy of French Revolution. Idea propagated by French like liberty, democratic rights were widely popular in Europe. पूरे यूरोप में जो आइडियाज़ थे, जो फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस कॉलोनीज को मिली थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे,
प्रोपोगेट मतलब वो काफ़ी खुश हो गए थे, मीन्स काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग उस आइडिया को लेकर। तो पूरे यूरोप में ये जो इनके आइडियाज़ थे, जो कॉलोनी ने जिस तरीके से अपनी फ्रीडम ली थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। कॉलोनी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम और एंड वर्क टू आउट फॉरेन कैप्टिविटी। मेन क्या था? फ्रीडम, है ना, जो फ्रीडम वहाँ नहीं थी लोगों को। तो इस तरीके से जब उन्होंने बाकी कॉलोनीज़ ने भी ये चीज़ देखी कि जो फ्रेंच कॉलोनी ने इतनी ईज़िली तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जो है उन्होंने वहाँ से इन सब चीज़ों से फ्रीडम ले ली, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि वहाँ बिल्कुल नहीं था। तो बाकी कॉलोनीज़ भी इन सब चीज़ों से क्या हुई? इन्फ्लुएंस्ड हुई। एंड स्पेशली इंडिया में भी जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस टाइम में हम लोग जो थे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो इंडिया में भी लोगों के अंदर एक बोलते ना एक इन्फ्लुएंस हुए, वो लोग भी एक एक्साइटमेंट जनरेट हुई कि अगर फ्रेंच में ऐसा हो सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस की कॉलोनीज़ को फ्रीडम मिल सकती है, तो हम लोगों को भी इस तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो आइडियाज़, जो चीज़ें उस टाइम हुई, लोग बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुए। काफ़ी सारी कॉलोनीज़ ने उसके बाद जो है फ्रीडम्स ली भी। एंड ये लास्ट टॉपिक था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। And after this I'll meet you in the next video with Russian Revolution. And if you have any doubt regarding these topics, you can ask me in the comment section. Do like and subscribe the channel, share with your friends. Thank you and have a nice. I hope you all are doing well. This is me, Priya Sharma, and today we'll start civics chapter 1. What is democracy? Why democracy? So what is democracy? Democracy is a form of government where ruler is elected by people. So in a simple definition, you can explain that democracy is a form of government where we elect our representative, where we elect our ruler. And for seeing further details that what exactly the democracy is, we are going to read features of democracy. Now we'll study features of democracy. There are 4 features of democracy. First feature is major decision by elected leader. It means to whom we have made our leader, means to whom we have voted and made our leader is only allowed to take decision for us. No one else can interrupt in his or her decision. Next one is free and fair election. In free and fair election, it means the currently ruling party is having a fear of losing, having a fair chance of losing. It doesn't mean that the currently who is ruling us, they're not having any fear of losing. They're like, oh, it's okay, the voting is being done, but again we are going to win. No, the fair chance of losing must be done in free and fair election. Next one is one person, one vote, one value. This is the most important thing. Like if we are voting, we should not discriminate on the basis of caste or particular criteria we have set up for voting, and that is not a democratic election. In a democratic election, each person vote have equal value, and that is most important thing when we are living in a democratic country. Next one is rule of law and respect of rights. Okay, these 3 features are for us, means for citizen. The last one is for basically for government, to whom we have elected our representative, to whom we have elected as our ruler, is having a duty to respect our rights and to rule according to the laws, means according to the constitutional laws which are formed in the constitution. On the basis of that laws only here the currently government have to work, and they have to respect our right as well. So these are the basic features of the democracy. On the basis of that, we can say that the country is democratic or not. After features of democracy, as you all know that every topic have some arguments and as well as some against arguments and some favor arguments. So in democracy also there is argument against democracy and argument in favor. So first we are going to read argument against. Leaders keep changing.
Leaders keep changing and this create instability. Like we all know that in democratic elections, after 5 years, leader keeps on changing. So somehow it is bad for us as well, because the past government which has worked many things for us, but the currently government has came and they'll understand our situation. They'll take some time to understand our situation basically. So it leads to instability, it leads to problem for us as well. Next one is, it's all about competition, no morality. Now the competition, like today you know very well that politics is all about competition. Nobody wants to understand the feelings of the citizen. Very few are there who are understanding the feelings, the situation of the citizen, and on the basis of that they're taking decision. So it also leads one more problem, that it is becoming a competition. Next one is delay decision. Now delay decision, how it came that delay decision, because you know very well many people are there, many representatives are there, and they have to consult with everyone. It is not like that you have chosen one ruler and he or she is going to take decision. No, he or she have to consult with others as well. So it will take some time and it became a delayed decision. So this is one more argument against democracy, that it take too much time to form any decision. Next one is do not know interest. Now somehow it happens that the government, like the currently government was there, but after 5 years the government changed. So that government will take some time and they don't know about our interest, that what we want. So it happens sometime that government take much time and to understand citizens and take decision, and it will lead to bad problem for us only. And next one is electoral corruption. Now electoral corruption is basically the thing which is fraud. Means in elections they used to do fraud, like for increasing the rate of votings, they pay some money and they do many fraud things, and that is somehow is very normal in democratic elections, and this is a basic argument against the democracy. Next one is argument in favor. Now we already read the argument against democracy. For sure there is many good things in this democracy as well. So argument in favor is accountable and better. Accountable means responsible. We all know that in a democratic government we'll elect our ruler and somehow he is responsible for our needs. Somehow he is responsible for each and every decision. So it is better for us as well that in a democratic government all the decision which is taken for us is taken by the ruler, and he or she is responsible for us. So it is quite better for us. Next one is quality of decision. Quality of decision, like in argument there is delay decision. Delay decision, we know that they have to consult with many people and then they'll form a decision, and somehow it is good for us as well, because the quality of the decision will be very good. Because if a single person will take decision for us, he'll or she'll see a particular aspects, but when many people are sitting there and they'll give their own experience, their different aspects will come together, so the quality of the decision will be very good. Next one is deal with conflicts and differences. Conflicts and differences is like, as we know, India is a vast country, many caste, many culture, many people live together. So in this, it's natural conflicts came, differences came. So in a democracy, we have constitution, and with the help of constitution, we can easily sort out these difficulties and these conflicts, because all the rules which are made in constitution, that is being made for us only. Means all the rights, all the laws, and on the basis of that only we have to take our decision. So it deals with deals with conflicts and differences very easily, very nicely with the help of constitution. Next one is dignity of citizen. Like dignity of citizens came, they have chosen a government, but they're taking a decision which is not good for few people. Means like pressure, it's generating a pressure towards a citizen. So somehow it happens ki citizen feel like that there is no one
who listen to me, who is listening to me. So in this democratic government, citizen is allowed to raise his or her voice and speak for his whatever the unfavorable decision was made for him or her. So it maintains the dignity of citizen. Next one is correct our mistakes. As we know, we change our government after 5 years. It happens sometimes, like we make a government, we have elected a ruler, but that ruler is not good for us. Somehow we feel that the decision which this ruler is taking, that is not cool or that is not good for us. So we can change our ruler after 5 years. So basically we can correct our mistakes in the democratic elections, in a democracy and in a democratic country. So basically these are the argument against democracy, and these are argument in favor of democracy. I hope you have understood both the things. Okay, now after arguments against democracy and favor in democracy, we are going to study the topic broader meaning of democracy. Now what is democracy? We know that democracy is a form of government where ruler is elected by people. The broader meaning of democracy, first thing, representative democracy means the representative means the leader which we have elected, that he or she must be democratic, means he or she must take decision according to citizens, according to our needs, according to our benefits. Next one is leaders are elected by adults. Adults means above 18 years. We know that in India above 18 years people are allowed to vote. So leaders are elected by adults. Next is major allowed. Major means majority allowed to take decision. Means majority of people vote for a person as a leader, and that particular person make decision for us, and he or she is only allowed to take decision for us, and he or she is only responsible for making any kind of decision. This is the basic broader meaning of democracy, as we can say. Okay, now we will study the difference between democratic and non-democratic government. In democratic government elect by the adult citizen, means citizen above the age of 18, they elect their representative. After that, citizens have fundamental rights. With the help of that, the government can't curb their rights, means they can live freely. Next one is leader rule with constitution and citizen right, means leaders who all are leaders, they have to rule according to the constitution laws, according to the constitution rights which is mentioned in our constitution, and they can't curb the citizen rights which are made for us. Next one, it is very accountable. Accountability means the responsibility, means whatever the decisions leader is taking, they are properly responsible for that, and in India we know that it is a democratic country. Next one, non-democratic country. Government is not elected. No government is elected. No, your heads are being elected by you. It is like a monarchy system or a leadership system is followed there. Next one is no right to citizen. There is no right to citizen. Whatever the leader want to do, whatever the leader want to speak, they'll speak, and whatever the rules they want to make for citizen, they'll make. No rules for leaders. There are no rules for leaders in maintaining the decision or whatever. No accountability. Accountability means no responsibility. Nothing is there, like in Saudi Arabia. It is the example of non-democratic country. Okay, by this we have finished this chapter, and I'll meet you in the next video. Till then, stay safe. वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस बार फर्स्ट टाइम आपके लिए इंट्रोड्यूस हुई हैं 2 केस स्टडीज़. एक केस स्टडी से 5 क्वेश्चंस आएंगे, दूसरी केस स्टडी से 5 क्वेश्चंस आएंगे. 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो जो 2 केस स्टडीज़ आपकी आएंगी, वो एक आएगी आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमा से, और दूसरी आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी से. तो आप जिस भी इंटरनेट से भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना, मैक्सिमा, मिनिमा एंड प्रोबेबिलिटी. तो यू विल गेट ईजिली 8 मार्क्स. नेक्स्ट है आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन. हमने बताया था यहाँ पर कि 5 न्यू पैटर्न में आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं.
जो 15 मार्क्स कंटेन करते हैं। ये भी बेटा 100% श्योर है कि मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट में से आएंगे, वो भी आपकी इक्वेशंस सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। तो उसमें आपका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आ सकता है, इक्वेशन फाइंड करने के लिए आ सकता है, तो आप आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है, सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज और मिसलेनियस, सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, यू विल गेट 5 मार्क्स इजीली। 3 डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका फेवरेट टॉपिक रहता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज, इस पर खास ध्यान देना। बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल में आपके ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट वहाँ से 5 मार्क्स का आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग वहाँ से आपका 5 मार्क्स का आएगा, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहीं और फोकस मत करना, बाकी सबसे आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग दी गई है वही आपको करना है। क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मार्क्स के 24 क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। इसमें से 16 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो मतलब अगर आपने चैप्टर्स कर रखे हैं तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, वो भी 10 आ रहे हैं। तो अगर आप बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे आएंगे जो आप एक बार अगर आपने चैप्टर किया है तो आसानी से किसी भी चैप्टर क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो 5 मार्क्स के बाद बच्चों को दिक्कत आती है 3 मार्क्स में कि सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मैंने जो डिसाइड किया है वो 7 टॉपिक से आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में इस बार सिर्फ आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है होमोजीनियस फंक्शन, एक आपको लीनियर फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही फॉर्म सिलेबस में है dy/dx प्लस py=q वाली, दूसरी फॉर्म नहीं है, और तीसरा आपका वेरिएबल सेपरेट। तो सिर्फ आपको 3 फॉर्म्स करके आनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स में भी आएगा, 2 मार्क्स में भी आएगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी 3 फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और वेरिएबल सेपरेट। तीनों फॉर्म्स अच्छे से कीजिएगा, क्वेश्चन 100% फंसेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स आपको देगा। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कंटिन्यूटी की भी एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इजीली 3 मार्क्स लेके आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं, जो 2 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, तो इसमें भी सिर्फ आपकी एक ही एक्सरसाइज बची। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको एक एक्सरसाइज करनी है। रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहले 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 एक्सरसाइज होंगी। और रिलेशन एंड फंक्शन से भी 100% श्योर है, उसमें आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो आप ध्यान रखना, रिलेशन एंड फंक्शन सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स देगा। इसमें जो चीज़ मैंने नहीं लिखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सिलेबस में रह गई है, तो उसको आप एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके आराम से 2 मार्क्स लेके आ सकते हैं। रिलेशन फंक्शन में सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी सारी कट हो चुकी हैं। एप्लीकेशन इंटरवल में भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है। कंटिन्यूटी में भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसमें बेटा काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, लेकिन जो 3 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं सिर्फ उन पे फोकस करना, अगर आपको बहुत कम दिनों में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। डिफरेंशियबिलिटी ये आप अच्छे से कीजिएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज हैं। तो आई होप ये आज का आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को हेल्प मिले पढ़ने के लिए कि केस स्टडीज़ कहाँ से आनी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। पूरे साल बच्चे लोग यही सोचते रहते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ढूंढा है। तो आप इसकी वीडियो को अच्छे से देख के अपने खुद भी देखिएगा, खुद भी इसका बेनिफिट लीजिएगा, और साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और सब